سال ہے 1973 اور یہ دن ہے 6 اکتوبر کا۔ جوئش کیلنڈر میں اس دن کو یوم کپور کہا جاتا ہے۔ اس مقدس دن مصر نے اپنی فوجیں اسرائیل میں داخل کر دی۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کو یوم کپور وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے 50 سال مکمل ہونے پر 7 اکتوبر 2023 کو صبح 6 بجے اسرائیل میں حماس نے 5000 راکٹ داغے اور اس آپریشن کو انہوں نے نام دیا الاقصی فلڈ۔ حماس کے اس حملے نے اسرائیل کے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کے امیج کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ اسرائیل نے جو آئرن ڈوم، پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اور ڈیوڈ سلنگ جیسے سیم یعنی سرفیس ٹو ایئر میزائل لگا رکھے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور اس حملے کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے۔ موساد جو دنیا کی چند بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں مانی جاتی ہے، اس کا امیج بہت بری طرح متاثر ہوا اور اس کے رول پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ کچھ جریدوں نے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ موساد کا فیلئر آف امیجنیشن ہے۔ حماس کے اس حملے کی اصل وجہ کو جاننے کے لیے آپ کو اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یروشلم لفظ کی ایٹمالوجی دو سیمیٹک ورڈز ارو اور سلیم سے مل کر بنا ہے۔ ارو جس کا مطلب ہے ہاؤس اور سلیم جس کا مطلب ہے سلامتی یعنی پیس، یعنی کہ ہاؤس آف پیس۔ اور یہ اس وقت جب کینانائٹ مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے اور کینانائٹ میں شلم کا مطلب ہوتا ہے گاڈ آف ٹوائلائٹ۔ یروشلم میں ہیومن پریزنس کا پہلا آرکیولوجیکل ایویڈنس 6 سے 7000 سال پرانا ہے اور یہاں کی پہلی پرماننٹ سیٹلمنٹ 3000 سے 2800 قبل مسیح میں ہوئی اور یہ ابتدائی برونز ایج کے اندر گیہون سپرنگ کے آس پاس کا وقت بنتا ہے۔ یروشلم کی پرماننٹ فورٹیفیکیشنز کے آرکیولوجیکل ایویڈنس 1550 سے 1200 BCE کے درمیان ملتے ہیں۔ یروشلم کی 5000 سالہ تاریخ میں یہ شہر 52 دفعہ حملوں کا شکار ہوا، 44 مرتبہ کیپچر اور ری کیپچر ہوا، 23 دفعہ اس کا محاصرہ ہوا اور 2 دفعہ اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ یروشلم سٹی کا سب سے پرانا حصہ 4 ملینیم BCE میں بنا، اس لیے آج بھی یروشلم کو دنیا کے چند قدیم شہروں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کنگڈم آف ہیون مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ 17 سینچری BCE میں کینانائٹ مذہب کے لوگوں نے یہاں کے اینشنٹ واٹر سسٹم کو محفوظ بنانے کے لیے شہر کے اندر میسو والز تعمیر کی۔ 1550 سے 1400 BCE کے درمیان یروشلم ایجپشن کنگڈم کی ایک سٹیٹ بن گئی اور بائبل کے مطابق 12ویں سینچری BCE میں یہ شہر جبوس اور یہاں کے آزاد کینانائٹ لوگ جیبوسائٹس کہلاتے تھے۔ بائبل کے مطابق اسرائیلی تاریخ 1000 BCE کے قریب شروع ہوتی ہے جب داؤد علیہ السلام نے جیبوسائٹس کو شکست دی۔ بائبل میں بک آف سیموئل کے مطابق داؤد علیہ السلام نے یہاں پر ایک قربان گاہ بھی تعمیر کی اور بائبل کے مطابق سلمان علیہ السلام نے یہاں پر ایک ہیکل تعمیر کروایا جس کو ٹیمپل آف سولومن بھی کہتے ہیں، اردو میں جس کو آپ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یروشلم 400 سال تک کنگڈم آف جوڈا کا کیپٹل رہا اور یروشلم نے 701 BCE میں اسیرین سیج کے خلاف اپنا کامیاب دفاع بھی اسی شہر میں کیا۔ 597 BCE میں یروشلم بیبیلونین حکومت کے تحت چلا گیا۔ عراق کا پہلا جو ٹائم تھا اس کو بیبیلونین پیریڈ کہتے ہیں۔ نیبوکڈ نظر نے زدیکیہ کو یروشلم کے تخت پر حاکم بنایا۔ زدیکیہ نے 587 BCE میں نیبوکڈ نظر کے خلاف بغاوت کر دی، اس کو ریوولٹ ان جوڈا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 587 BCE میں نیبوکڈ نظر نے یروشلم پر حملہ کیا اور زدیکیہ کی اولاد اس کے سامنے ذبح کی اور نیبوکڈ نظر نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودی جس کو اپنا پہلا ٹیمپل کہتے ہیں، یہ وہی ہیکل سلمانی ہے اور اس کو نیبوکڈ نظر نے 587 BCE میں تباہ کر دیا تھا۔ 539 BCE میں سائرس اعظم، سائرس دا گریٹ، جنہوں نے ایکمنیڈ امپائر ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کو قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ 539 میں انہوں نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ سائرس اعظم نے یہودیوں کو واپس یہاں داخلے کی اجازت دے دی، جو نیبوکڈ نظر نے ان کے داخلے پر پابندی لگائی تھی وہ ختم ہو گئی اور 520 BCE میں انہوں نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا، یعنی کہ ہیکل سلمانی دوسری دفعہ تعمیر ہوا، اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ کلاسیکل اینٹیکویٹی میں اس دور کو یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ کہتے ہیں۔ 332 BCE میں جب سکندر یونانی نے پرشین امپائر کو فتح کر لیا تو یروشلم سکندر کی حکومت میں چلا گیا۔ سکندر کی موت کے بعد یروشلم پٹولمی 1 کی حکومت کے اندر چلا گیا۔ 198 BCE میں بیٹل آف پانیم میں پٹولمی 5 کو اینٹیوکس دا گریٹ نے شکست دی اور یروشلم سیلوسڈ امپائر کے کنٹرول میں چلا گیا اور یہ وقت وہ تھا جب بہت سارے جیوز ہیلینائزڈ ہو گئے۔ ہیلینائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ نان گریکس کا گریک کلچر، ان کی زبان، ان کے مذہب کو اختیار کر لینا ہیلینائزیشن کہلاتا ہے۔ جب یہ کلمینیشن اپنے عروج کو پہنچی تو 160 BCE میں مٹاتھیس اور اس کے 5 بیٹوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔
मेटाथियस की डेथ के बाद इस रिवोल्ट को उसके बेटे जूडा मकाबीज ने लीड किया और उसने वापस यरूशलेम पे कब्जा करके टेंपल वर्शिप को बहाल किया। यहूदी आज भी इसकी याद में एक ज्यूइश फेस्टिवल हनुक्का को सेलिब्रेट करते हैं। इस रिवोल्ट में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको मकाबीज कहा जाता था और इस मकाबियन रिवोल्ट के नतीजे में यरूशलेम एक खुद मुख्तियार रियासत हैसमोनियन अंपायर का दारुल हुकूमत बना। 67 BCE में इस रियासत के दो प्रिंसेस हरकानस II और एरिस्टोबुलस II के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ही अपनी लड़ाई के फैसले के लिए रोमन जनरल पोम्पे के पास चले और इस गलती ने रोमन अंपायर का यरूशलेम पे कब्जे का रास्ता हमवार किया। 37 BCE में हेरोड द ग्रेट ने यरूशलेम का मुहासरा किया। ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहा। इस मुहासरे की कामयाबी के बाद हैसमोनियन अंपायर का खात्मा हो गया। हेरोड द ग्रेट के दौर में सेकंड टेंपल की एक्सपेंशन भी हुई और उसका मौजूदा साइज था उससे उस टेंपल को डबल कर दिया गया। हेरोड द ग्रेट की वफात के बाद यरूशलेम डायरेक्ट रोमन रूल के अंडर चला गया। 1 CE में यरूशलेम क्रिश्चियनिटी की बर्थ प्लेस बना। उस वक्त हुक्मरान जो थे वो रूमी थे और रूमी ईसाई और यहूदी दोनों को ही अपना दुश्मन समझते थे और वो ईसाइयों को सिर्फ यहूदियों का एक फिरका समझते थे, लेकिन यहूदी और ईसाई आपस में भी एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। और इस दुश्मनी की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ईसाई जिसको खुदा का बेटा कहते हैं और खुदा समझे बैठे हैं नाउजुबिल्ला, यहूदी उनको वलिदुज़्ज़िना समझते हैं नाउजुबिल्ला, और यहूदियों ने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब चढ़ाया। सन 66 CE में रोमन प्रोविंस जुडेया ने रोमन अंपायर के खिलाफ बगावत कर दी। 5 महीने की ब्रूटल सीज ऑफ यरूशलेम के बाद रोमन एम्परर टाइटस ने यरूशलेम को फतह कर लिया और हिस्टोरियंस लिखते हैं कि टाइटस ने एक दिन के अंदर 1,33,000 के करीब यहूदियों को कत्ल किया और 1 लाख को अपने साथ कैदी बना के ले गया। टाइटस ने जो सेकंड टेंपल है उसको भी तबाह कर दी और वो आज तक गिरा हुआ है। उसके अंदर सिर्फ एक वॉल बची है, वेस्टर्न वॉल भी कहलाती है, जिसको अमूमी तौर पर वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, दीवार गिरिया, जिस पे यहूदी खड़े होकर रोते हैं और उसकी तरफ मुंह करके तौरात पढ़ते हैं। यहूदी आज भी मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका जो सेकंड टेंपल था वो तो टाइटस के वक्त से तकरीबन 2000 साल से गिरा हुआ। टाइटस की इस फतह की यादगार के तौर पर रोम में आर्क ऑफ टाइटस बनाई गई। रोमन एम्परर टाइटस ने यहूदियों को यरूशलेम से निकाल दिया और इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। टाइटस के दौर में बेशुमार यहूदियों की एग्जीक्यूशन की गई और इनको फोर्स लेबर के लिए इस्तेमाल किया गया और जो ताकतवर यहूदी थे उनको ये कोलोसियम्स में ले जाते थे ग्लेडिएटर्स के तौर पे, और जो यहूदी बचे वो पूरी दुनिया में फैल गए। जिसका जहां ठिकाना बना उसने वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। रोमन एम्परर टाइटस के इस हमले के बाद यहूदियों को अर्ज़े फलस्तीन से निकाल दिया गया और यहाँ से इनके 2000 साला डायस्पोरा का आगाज होता है। डायस्पोरा यानी इनका दौर इंतशार। इसी डायस्पोरा में बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा ये तीनों यहूदी कबाइल भी मदीना में आकर आबाद हो। टाइटस के दौर में यरूशलेम क्योंकि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, इसलिए यरूशलेम को रोमन्स ने दोबारा तामीर किया और इसका नाम एलिया कैपिटिलोना रखा और यहाँ पर रोमन इंस्टीट्यूशंस, उनके फोरम और टेम्पल्स बनाए गए। ये यहूदियों के डायस्पोरा की पहले 300 साल की कहानी, और इन पहले 300 सालों में यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते रहे, लेकिन 312 ईस्वी में ईसाइयों को एक एज मिला क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाईयत कबूल कर ली और इसके पीछे पूरी रोमन एम्पायर ईसाई हो गई। उस वक्त तो यही था, जो बादशाह का मजहब होता है वो रियाया का मजहब होता है। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ये वही बादशाह है जिसको कुस्तंतीन आजम भी कहते हैं, जिसने शहर कॉन्स्टेंटिनोपल तामीर करवाया और इसको बैजेंटीन एम्पायर का दारुल हुकूमत बनाया। उर्दू में इस शहर को कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, और ये शहर तुर्की में मौजूद है। कॉन्स्टेंटाइन ने एडिक्ट ऑफ मिलान साइन की, जिसके जरिए क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर के अंदर लीगलाइज कर दिया गया, और इसने अपनी माँ हेलीना को एक पिलग्रिमेज पर भेजा। इस पिलग्रिमेज पर हेलीना ने उस जगह को रिकॉग्नाइज कर लिया जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया, और इसी जगह पर चर्च ऑफ होली स्पेल्चर बनाया गया, और हेलीना ने यह दावा भी किया कि उसको ट्रू क्रॉस मिल गई। अब कॉन्स्टेंटाइन ईसाई हो चुका था तो यहूदियों के बुरे दिन आ गए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईसाई तो यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते हैं, तो जो बुरा सलूक शुरू हुआ है कॉन्स्टेंटाइन के दौर में यहूदियों पर, और इनका सोशल बाइकआउट किया गया, शहरों में दाखिला बंद हो गया, घेटोज में रखा गया, शदीद परसिक्यूशन इन लोगों की उस दौर में हुई, और इसी के नतीजे में यहूदियों ने बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ कुछ रिवोल्ट्स भी की, जिसमें सबसे मशहूर स्मार्टन रिवोल्ट है जो नाकाम ही हुई। 614 CE में रोमन एम्पायर के खिलाफ सैसानिड्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूशलम कामयाब हो गई और यरूशलम रोमन्स के हाथ से निकलकर ससानी हुकूमत के पास चला गया। अब क्योंकि यहूदियों ने ससानियों की मदद की थी इस फतह के अंदर, तो वो भी शहर में दाखिल हो गए और फिर उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर के दौर के मजालिम का बदला लिया और हजारों ईसाई, औरतें, बच्चे, बूढ़े उन्होंने कत्ल कर दिए और ईसाइयों के मकामात मुकद्दसा को भी तबाह कर दिया, जिसमें चर्च ऑफ होली स्पेल्चर भी शामिल है। बाय द वे, चर्च ऑफ होली स्पेल्चर को आप यूं समझ लें क्रेडल ऑफ क्रिश्चियनिटी समझते हैं ईसाई इसको। लेकिन यहूदियों की ये बगावत और ये साजिश बहुत शॉर्ट लिव्ड साबित हुई क्योंकि रोमन एम्परर हेराक्लिस ने यरूशलेम को दोबारा फतह कर लिया।
सन 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बासआदत हुई। 610 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रिहाइश पजीर थे, लेकिन मदीना के यहूदी आपके खिलाफ साजिशें करते थे और कुरैश मक्का को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते थे कि ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो। आपने वो सुन रखा होगा वाकया जिसमें एक वफद को उन्होंने कहा कि अगर ये नबी हैं सच्चे तो पूछो इनसे वही 3 सवाल कि रूह की हकीकत क्या है, असहाबे कहफ कौन थे और जुल्करनैन कौन था। ये वही सवाल हैं जो बनी इसराइल और सूरत कहफ में जिनका जिक्र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए तो आपने स्टेट्समैनशिप का कमाल मुजाहिरा किया और इन्हीं यहूदियों के साथ सबसे पहला मुआहिदा कर लिया, जॉइंट डिफेंस पैक्ट, जिसको मिसाक मदीना कहते हैं। यानी अगर कुरैश मक्का हमला करेंगे तो मिलकर उनका दिफा किया जाएगा। लेकिन यहूदी वादा वफा करने वाले तो नहीं थे, तो हर जंग के ऊपर इन्होंने मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी की, जिसकी सजा भी इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फवक्तन दी। जंगे बदर के बाद बनु कैनका मदीना से निकाल दिए गए और जंगे उहद के बाद बनु नजीर मदीना से निकाल दिए गए। इनके गज़वा खंदक के बाद बनु कुरैज़ा को मदीना से निकाल दिया। और ये तो कुरान में अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमानों की दुश्मनी में तुम सबसे ज्यादा जिनको शदीद पाओगे वो यहूदी हैं और उसके बाद मुशरिकीन हैं। मतलब मुशरिकीन का जिक्र भी बाद में, सबसे पहले यहूदियों को मुसलमान दुश्मनी में तुम अव्वल पाओगे। दौर खिलाफत राशिदा में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की क़यादत में मुसलमानों ने यरूशलेम का मुहासरा कर रखा। ये मुहासरा तूल पकड़ गया और शहर भी अंदर से सेल्फ सफिशिएंट था। ईसाई उलमा ने मुसलमानों को कहा कि यहाँ अगर तुम क़यामत तक भी पड़े रहोगे ना तो ये शहर नहीं फतह होने वाला। हाँ, लेकिन ये शहर फतह होगा एक दरवेश बादशाह के हाथ पर। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि वो दरवेश बादशाह तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो मदीना में बैठे हैं। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पैगाम पहुंचाया कि हजरत आप बैतुल मक़दिस आ जाइए और ये शहर फतह हो जाएगा। अब ये वही तारीखी सफर है 700 मील का, जिसमें एक ऊंट है, एक खादिम है और एक आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक मंजिल तक खादिम ऊंट की सवारी कर रहा है और एक मंजिल तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट की सवारी कर रहे हैं। और हुआ ये कि जब यरूशलेम पहुंचे तो बारी थी खादिम की, तो खादिम ने हाथ बांध दिया कि हजरत अगर इस हालत में सहाबा ने मुझे दूसरों ने देखा तो वो तो मेरा बुरा हाल कर देंगे कि तुमने क्या किया हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ऊंट की नकेल पकड़े आगे चल रहे हैं और तुम खुद ऊंट की सवारी कर रहे हो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि जिसकी बारी है ऊंट पर वही बैठेगा। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट की नकेल पकड़े आ रहे हैं और जूतों में कुछ कीचड़ लगा तो जूते भी हाथ में पकड़े हुए थे और कपड़े हैं तो वो पेवंद वाले और खादिम ऊंट पर बैठा हुआ। इस हालत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रिसीव किया उन्होंने और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज की कि आप अपना कुछ हुलिया दुरुस्त फरमा लें क्योंकि ये बहुत मुतमद्दिन जगह है, तो फिर उसके बाद आप इनसे मिलने के लिए जाएं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अबू उबैदा से, हम वो कौम है जिनको अल्लाह ने इज्जत इस्लाम की वजह से दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी हालत में ईसाइयों से मिलने के लिए गए और उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर शहर सरेंडर कर दिया। लेकिन ईसाइयों ने ये शर्त रखी कि आप यहूदियों को दाखिले की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा यहूदियों की इजाजत होगी कि वो अपने मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए यहाँ पर आ सकें। फिर इसके बाद ईसाइयों ने मुआहिदे की 11वीं शिक में ये जरूर लिखवाया कि ठीक है आप उन्हें ये इजाजत दे दें कि वो अपने मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए आए, लेकिन यहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते। इस मुआहिदे को दौर खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमय्या, बनु अब्बास, फातमी आए, सल्जूक आए, अयूबी आए, ममलूक आए और उसके बाद ऑटोमन्स आए। उन्होंने भी इस मुआहिदे को निभाया। मुसलमानों के दौर में यरूशलेम में बहुत तरक्की हुई। बनु उमय्या के बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये डोम ऑफ द रॉक गुंबद रखा हुआ है, ये इसी अब्दुल मलिक बिन मरवान ने रखवाया। और मस्जिद अक्सा के सदरन एंड की तामीर भी बनु उमय्या के दौर में हुई। 712 ईस्वी में स्पेन जो उस वक्त ईसाइयत का गढ़ था उस पर हमला किया, स्पेन पर फतह हासिल की। स्पेन की इस फतह में यहूदियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और मुसलमानों को मुख्तलिफ रास्ते बताए। इसलिए तारिक बिन ज़ियाद की नजर में यहूदियों की वैल्यू बढ़ गई और मुसलमानों ने यहूदियों को मुस्लिम स्पेन के अंदर आला ओहदों पर फायज किया। इजराइल के फाउंडिंग फादर डेविड बिन गोरियान ने भी एक अपनी स्पीच में कहा था कि मुस्लिम स्पेन वाज द गोल्डन एरा ऑफ आवर डायस्पोरा। लेकिन मुस्लिम स्पेन में बैठकर भी यहूदियों ने ईसाइयत की पीठ में छुरा घोंपा और प्रोटेस्टेंट्स मजहब बनाया। स्पेन की यूनिवर्सिटियों के अंदर पूरे यूरोप से स्टूडेंट्स आते थे क्योंकि उस वक्त यूरोप का तो मेडिएवल का पीरियड था और मुसलमानों का ये गोल्डन टाइम था। यूरोप से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ बैठकर यहूदी ईसाई तलबा के जहन में जो जरासीम डाल रहे थे वो उस वक्त की राइज ईसाइयत के खिलाफ बगावत थी। उस वक्त सब कंट्रोल पोप के हाथ में होता था। पोप जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे हराम कर दे, ये सब पोप की मर्जी। क्योंकि सेंट पॉल ने शरीयत मूसवी को तो वैसे ही साकत कर दिया था, अब पोप ही बाइख्तियार था। लेकिन यहूदी इन स्टूडेंट्स को ये समझाते थे कि पोप भी आखिर है तो इंसान ना, उसको ये इख्तियार किसने दिया, असल हैसियत तो किताब की होनी चाहिए और किताब पर हक तो सबका। ये डिवाइन राइट पोप का तो नहीं, कोई भी किताब उठा के पढ़ सकता। और ये बातें उनकी आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों में असर करने लगी और इसका नतीजा ये हुआ अथॉरिटी पोप से निकलकर बाइबल के पास चली गई। अब क्योंकि बाइबल में ज्यादा हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट का, ओल्ड टेस्टामेंट की वजह से ईसाइयों के दिल में यहूदियों की अजमत बैठ गई और यहाँ से प्रोटेस्टेंट्स मजहब ने जन्म लिया और वो ये कहने लगे मूसा के उम्मती तो ये हैं, असल कौम तो ये है, इब्राहिम की औलाद तो ये है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो दुश्मनी ईसाइयों और यहूदियों में थी वो प्रोटेस्टेंट्स के यहाँ खत्म हो गई।
بنو عباس اور فاطمید کا دور بھی یہودیوں کے لیے اچھا ہی رہا. اب اس پر فرسٹ ملینیم کا اختتام ہوتا ہے اور سیکنڈ ملینیم کا آغاز ہوتا ہے.